السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نوفل کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہی نوفل نے اپنی محبت میں دھوکہ کھایا تھا اور اس کا دل بدلے کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ ہر عورت کو اس وقت وہ ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہر عورت اپنی دشمن نظر آ رہی تھی۔ اس کی نفرت نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اپنی گہری جذباتی شکست کو دنیا کی ہر لڑکی سے انتقام میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ مہربانو، جس نے آج ہی اس بنگلے میں قدم رکھا تھا اور جس کی ظالم ماں نے اسے یہاں بھیجا تھا، نوفل کی اس رات کی شکار بننے والی تھی۔ نوفل نے اپنی گاڑی کو ریسٹ ہاؤس کے باہر روکا اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انجان مہربانوں کو گاڑی سے باہر کھینچتے ہوئے اندر لے آیا۔ مہربانو، جو نئی نئی اس بنگلے کی زینت بنی تھی، اب اس صورتحال میں پریشانی اور خوف کی علامت بن گئی تھی۔ جب نوفل نے مہربانوں کو اپنی نوکرانی کے ہاتھوں اپنے کمرے میں پہنچایا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا جنون اور غصہ تھا۔ وہ اپنے اندر بھڑکتی نفرت کی آگ میں جل رہا تھا اور اب اس کا شکار بنگلے کی ایک نئی لڑکی مہربانو تھی۔ مہربانو کا دل دھڑک رہا تھا۔ نوفل کے چہرے پر ایک ایسی چمک دیکھتے ہوئے مہربانو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ چمک کسی آنے والے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوتے ہی نوفل نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی نظریں مہربانو کو تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر مہربانو پر پڑی تو اپنی نظریں مہربانو پر جما کر اسے دیکھنے لگا۔ مہربانو جو پلنگ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی، وہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نوفل کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نفرت مہربانو کو بے چین کر رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں انتقام کی چمک لیے وہ مہربانو کو گھور کر دیکھنے لگا۔ نوفل ایسا رویہ اپنا کر اپنے دل کو تسکین دے رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو اپنے لیے تسکین کا لمحہ محسوس کر رہا تھا، لیکن مہربانو کے لیے یہ سب منظر ایک خوفناک خواب سے کم نہ تھا۔ نوفل کی اس قدر نفرت کی شدت نے مہربانو کے دل میں خوف اور بے یقینی پیدا کر دی تھی۔ چاروں طرف خوف کا منظر نظر آ رہا تھا۔ تبھی نوفل مہربانو کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنی نفرت کی شدت میں اور اضافہ کرنے لگا۔ نوفل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ سے ملا ہوا دھوکہ اور اپنی شکست کی بھاری قیمت مہربانو سے وصول کرے۔ نوفل کے لیے اپنی نفرت کی وجہ سے مہربانو کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ مہربانو کے لیے نوفل کا ایسا رویہ دیکھ کر اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا ناممکن تھا۔ مہربانو یہ سوچنے لگی کہ آج کی رات ایک ایسی رات ہے جس میں نوفل کی آنکھوں میں چھپی نفرت اور اس کے انتقام کی رات تھی۔ آج کی رات مہربانو کی مظلومیت کی ایک نئی داستان کا آغاز ہونے والا تھا۔ نوفل اپنے باپ کا ایک بگڑا ہوا امیرزادہ بیٹا تھا۔ نوفل بہت ہی جذباتی اور زبان دراز لڑکا تھا۔ وہ سوائے اپنی ماں کے کسی سے بھی قابو میں نہیں رہتا تھا۔ بہت ہی عیاش اور بگڑا ہوا تھا۔ نوفل کے دو دوست ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن نوفل نے اپنی دوستوں کے ساتھ پہاڑوں پر جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو نوفل کے ماں باپ نے اجازت نہیں دی، لیکن آخر میں انہیں اپنے بیٹے کی خاطر مجبور ہونا پڑا اور انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ نوفل کی ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ نوفل اپنے روپے پیسے کی وجہ سے کسی بھی غریب انسان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ غریبوں کو عجیب عجیب طریقے سے تنگ کیا کرتا اور ان کے دل کی آہیں لیتا رہتا تھا۔ پہاڑوں میں 2 دن گزارنے کے بعد نوفل صبح صبح اکیلا ہی گاڑی میں باہر چلا گیا اور پہاڑوں کی بل کھاتی ہوئی سڑکوں پر گاڑی کو تیز بھگاتا ہوا لطف اندوز ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ نوفل اپنی مستی میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی ٹکرا گئی۔ نوفل نے جیسے ہی گاڑی کو بریک لگائی
बाहर जाकर देखा तो एक लड़की अपने भीगे हुए लिबास में सड़क को पार करने की कोशिश करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी के साथ टकराकर जमीन पर गिर गई थी। जैसे ही नौफिल ने हाथ थामकर उसको उठाया तो उस लड़की का पुरकशिश चेहरा देखकर हैरान और परेशान रह गया। नौफिल की आंखों और दिल को वो चेहरा भा गया था और वो मुसलसल उसे देखता जा रहा था, जबकि वो लड़की इस पर गुस्सा करती जा रही थी और गुस्से में बहुत बुरा भला कहती जा रही थी। लेकिन नौफिल, जो कि बहुत ही बदज़बान, बद लिहाज और बिगड़ा हुआ लड़का था, उसे देखकर खामोश खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। इतने में गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी होने की वजह से ट्रैफिक जैम होने लगी। जैसे ही उस लड़की ने गाड़ियों का हॉर्न सुना तो वो भागकर सड़क की दूसरी तरफ चली गई और न जाने कहाँ गायब हो गई। नौफिल ने भागकर उसका पीछा करना चाहा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। नौफिल फिर वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने होटल का रास्ता ले लिया। होटल पहुंचने के बाद उसके दोस्तों ने बताया कि वो उसका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। नौफिल को भीगा हुआ देखकर उसके दोस्त भी उस पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे, जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए और तुम्हारे मम्मा पापा को तुम्हारे लिए यहाँ पर आना पड़े। नौफिल जल्दी से कपड़े तब्दील करके आ गया। तभी नौफिल के एक दोस्त अब्दुल्ला ने नौफिल से पूछा कि अब घर वापस जाने का क्या इरादा है, क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए आए थे और अब हमें वापस जाना है। अब्दुल्ला ने नौफिल के कंधे को हिलाया और फिर अपने वापस जाने का सवाल किया। नौफिल अपने बालों में हाथ फेरने लगा और उसने अब्दुल्ला से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, पहले तो हम यहाँ 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन अब मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं। अब्दुल्ला ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या बात कर रहे हो? नौफिल ने कहा, ठीक कह रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, और हाँ, जाते हुए तैयब को भी अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं और मैं खुद नहीं जानता कि अब मैं कब तक यहाँ रहूँगा। तैयब ने कहा, मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों यहाँ रहना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मज़ीद 2 दिन तक नौफिल रोज़ाना उस सड़क पर जाता और उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे उस लड़की का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। चंद दिन गुजरने के बाद नौफिल ने उस लड़की को पहाड़ों में होने वाले एक फेस्टिवल में दोबारा से देखा। वो लड़की उससे कुछ फासले में लोगों की भीड़ में थी और नौफिल ने बहुत कोशिश की कि वो उस लड़की से जाकर मिले, लेकिन लोगों के हुजूम ने उसे वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। नौफिल ने अपने मोबाइल में उसकी बहुत सी खूबसूरत तस्वीर ले ली। उसे यकीन हो गया कि ये लड़की ज़रूर यहीं की रहने वाली है, क्योंकि अगर ये मेरी तरह टूरिस्ट होती तो अब तक यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन यहाँ इस फेस्टिवल में भी शरीक है, उसका मतलब है कि ये लड़की यहीं की रहने वाली है। नौफिल के दोस्तों ने नौफिल को इसका पीछा करते हुए देख लिया था। वो उससे कहने लगे, क्या चक्कर है, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की के पीछे जाना चाह रहे हो, हमें भी कुछ बताओ। नौफिल ने उन्हें बताया कि मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए। अब्दुल्ला और तैयब नौफिल से इस लड़की के बारे में पूछने लगे, लेकिन नौफिल ने कहा, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। तैयब और अब्दुल्ला परेशान हो गए कि ना जाने उस लड़की ने नौफिल की शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी है और ना जाने अब नौफिल उसके साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि वो नौफिल की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और वो किस तरह की गंदी आदत का मालिक है जो नौफिल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। नौफिल के दोस्त उस लड़की के लिए फ़िक्रमंद होने लगे कि अब ये ज़रूर उस लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देगा, लेकिन नौफिल की आंखों की चमक से वो दोनों समझ गए कि ज़रूर ये कोई प्यार का मामला लग रहा है। लगता है कि नौफिल को वो लड़की पसंद आ गई है। नौफिल अपने दोस्तों से कहने लगा, मुझे उस लड़की के बारे में हर बात मालूम करनी है, ये कहाँ रहती है और मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई और निशान नहीं मिल रहा। तभी तैयब को एक तरकीब सूझी।
उसने नौफिल से कहा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से घर लेने की बात करते हैं, और जब वो हमें मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जाएगा तो हम वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछेंगे। नौफिल को तरकीब समझ आ गई। उसने घर देखने की आड़ में वहाँ के लोगों से उस लड़की के बारे में पूछना शुरू किया जो कि फेस्टिवल के अंदर नौफिल के मोबाइल फ़ोन में किसी तस्वीर में नुमाया नज़र आ रही थी। नौफिल मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उस लड़की की तस्वीर दिखाता और उसके बारे में पूछता रहता। तभी एक बच्चे ने कहा कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? नौफिल ने कहा, बस ऐसे ही, मुझे उससे छोटा सा काम है। उस बच्चे ने कहा, ये मेरी टीचर है और ये करीब के स्कूल में पढ़ाती है। नौफिल ने उस बच्चे से घर का पूछा, लेकिन उस बच्चे ने घर का नहीं बताया और कहा कि मैं घर का एड्रेस नहीं जानता, लेकिन ये मिस मेहर बहुत गुस्से वाली और लड़ाकू है, आप इससे दूर रहिएगा। नौफिल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो समझ गया कि उस लड़की का नाम मेहर है। होटल वापस जाने के बाद नौफिल मेहर के बारे में सोचने लगा कि अब उसे किस तरह मेहर से मिलना है और वो उससे मिलकर क्या कहेगा। ऐसे ही कुछ सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे और अब वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अब फिर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और सुबह हो गई। नौफिल ने गाड़ी में बैठते हुए शीशे में खुद को देखकर संवारना शुरू कर दिया और स्कूल के करीब जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने दूर से आते मेहर को देख लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत लिबास पहने हुए चादर ओढ़े आ रही थी और उसके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे थे। तभी नौफिल गाड़ी से बाहर निकलकर मेहर के सामने आकर खड़ा हो गया। वो इसे अचानक अपने सामने देखकर घबरा गई। मेहर ने नौफिल के आगे से गुजरने की कोशिश की, लेकिन नौफिल बार बार उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता। मेहर ने स्कूल जाने की जल्दी में उसे धक्का दिया और बदतमीज़ कहकर स्कूल के अंदर चली गई। नौफिल ने भी स्कूल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया। नौफिल वहीं स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी में इंतज़ार करने लगा। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, सबसे पहले बच्चे बाहर भागे और थोड़ी देर में स्कूल की टीचर्स भी बाहर आ गईं। उसके साथ इस बार स्कूल के बच्चे नहीं थे, बल्कि कुछ लड़कियां थीं और सब लड़कियां करीब के बाजार में चली गईं। नौफिल भी उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, मेहर, ये देखो, ये ज्वेलरी कितनी खूबसूरत लग रही है। नौफिल ने ऐसे ही काफ़ी देर तक उसका पीछा किया और थक गया और एक ठेले पर बैठकर चाय पीने लगा। वो मेहर को देखता जा रहा था कि अचानक लोगों की भीड़ में मेहर एक बार फिर गायब हो गई। अब वो हर रोज़ उसके स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता और छुट्टी के वक्त उसका पीछा करता। एक दिन मेहर ने नौफिल को स्कूल के बाहर खड़ा देखकर रोक लिया और उससे यहाँ रोज़ाना आने की वजह पूछने लगी। नौफिल पहले तो खामोश खड़ा रहा और मेहर बोलती जा रही थी। मेहर ने कहा, मैं तुम्हें कई दिन से यहाँ देख रही हूँ और मैंने महसूस किया है कि तुम हर रोज़ मेरे पीछे आते हो। तुम्हें मुझसे क्या मसला है? मैं तुम्हें नहीं जानती, उसके बावजूद तुम मुझे तंग करते हो। ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस से तुम्हारे बारे में कंप्लेन करनी पड़े। नौफिल ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आता हूँ। जैसे ही मेहर की नज़र गाड़ी पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि तुम वही लड़के हो जिसने कुछ अरसा पहले मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर लगाई थी और मैं ज़मीन पर गिर गई थी। नौफिल ने बात को तब्दील करते हुए कहा, जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं वही हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए कई दिन से आपका पीछा कर रहा हूँ ताकि जैसे ही मौका मिले मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। पहले तो मेहर बहुत गुस्से से बोलती रही, लेकिन फिर नौफिल की चिकनी चपड़ी बातों में आ गई और उसने नौफिल को माफ़ कर दिया। ऐसे ही बहाने बहाने से नौफिल मेहर के सामने आता जाता था और मेहर को नौफिल से बात करना पड़ती थी। इसी तरह दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मेहर छुट्टी के बाद हर रोज़ नौफिल को पहाड़ों के खूबसूरत और दिलकश पॉइंट दिखाया करती थी और उसी के साथ घूमा फिरा करती थी, जबकि नौफिल के दोस्त अकेले घुमा फिरा करते थे
और अपना बाकी का वक्त होटल के अंदर ही गुजारा करते थे। लेकिन नौफल महर के साथ पहाड़ों में अपने यादगार लम्हे गुजार रहा था। एक दिन नौफल ने महर से पूछा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तुम कौन हो और तुम नौकरी क्यों करती हो? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? महर ने संजीदा होते हुए नौफल को बताया, मैं महर हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी की वफ़ात हो गई थी और उनकी वफ़ात के बाद मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी माँ से एक भाई और एक बहन है। मेरे अब्बू एक ड्राइवर हैं जो कि यहीं पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मुझे घर में ज़्यादा वक्त ना गुजारना पड़े, इसीलिए मैं ये नौकरी करती हूँ ताकि ख़ुद को मसरूफ़ रख सकूँ, क्योंकि मेरी सौतेली माँ और मेरे बहन भाई मुझे अपने पास बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारूँ और सिर्फ सोने के लिए घर जाऊँ। नौफल महर की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने महर से अफसोस का इजहार किया और कहा कि अब तुमने कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर महर की आंखों में आंसू आ गए। नौफल ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, शाम होने वाली है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। ये पहली बार थी कि जब नौफल महर को छोड़ने के लिए उसके घर गया था। घर से कुछ फासले पर महर ने गाड़ी रुकवा दी और कहा, बस मैं यहाँ से खुद पैदल चले जाऊंगी। लेकिन नौफल ने कहा, मैं तुम्हें रास्ते में इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। महर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आदत है और यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। महर अपने घर की तरफ चलने लगी और नौफल उसका पीछा करने लगा। जैसे ही महर अपने घर में दाखिल हुई, नौफल भी उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे के करीब पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही महर की सौतेली माँ ने महर पर भड़कना शुरू कर दिया। नौफल ये सब सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। महर की माँ अपने शौहर का गुस्सा महर पर उतार रही थी और उसके लहजे से साफ महसूस हो रहा था कि जैसे उससे शदीद नफरत करती हो। उसी गुस्से के आलम में महर की माँ के मुंह से निकला कि तुम्हारा बाप जो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है और मेरे बच्चों को ज़रा भी अच्छा नहीं समझता, 2 दिन से गया हुआ है, न जाने कब वापस आएगा। उसे कोई फिक्र ही नहीं, और तुम्हारे पास जो पैसे हैं मुझे दो ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। महर ने अपनी आंसुओं वाली आंखों से अपना बैग पकड़ा और उसमें से पैसे निकालकर अपनी सौतेली माँ को दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। नौफल बाहर खड़ा सब कुछ देखता जा रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नौफल वापस अपने होटल में आ गया। जब उसके दोस्तों ने इसे देखा तो उससे इसकी खामोशी की वजह पूछने लगे, लेकिन नौफल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। नौफल का रवैया देखकर उसके दोस्तों ने आपस में प्लान किया कि हम दोनों को वापस जाना चाहिए, क्योंकि नौफल पहले वाला नौफल नहीं रहा। तभी उन्होंने नौफल से कहा कि वो दोनों घर वापस जाना चाहते हैं। नौफल ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर अपने दोस्तों को दिए और कहा कि सुबह होते ही दोनों यहाँ से चले जाना। अब्दुल्ला ने कहा, तुम नहीं जाओगे? नौफल परेशानी के आलम में सर हिलाते हुए कहने लगा, मैं खुद नहीं जानता कि मैं वापस कब जाऊंगा। तैयब ने कहा, तुम जैसा बिगड़ा हुआ लड़का इस तरह कैसे तब्दील हो सकता है? तुम्हारी नज़र में तो गरीब लोग कीड़े की मानंद थे, तो फिर तुम किस तरह एक नौकरी करने वाली आम सी लड़की के बारे में इस तरह से संजीदा हो सकते हो, जबकि तुमने शहर में कई लड़कियों से दोस्ती करके उनकी ज़िंदगियां ख़राब की हैं। तो फिर तुम किस तरह इस गरीब लड़की के बारे में इस तरह संजीदा हो गए हो? नौफल ने कहा, मैं सच में नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया है। मेरी सारी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे महर से प्यार हो गया है। अब्दुल्ला ने कहा, चलो तैयब, घर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब हमारा दोस्त हमारा नहीं रहा, क्योंकि हमें यहाँ लाने के बाद ये खुद पूरा दिन होटल से गायब रहता है और मजबूरन हमें होटल में बंद रहना पड़ता है। बेहतर यही है कि हम दोनों वापस अपने घर चले जाएं। सुबह हुई, नौफल महर से मिलने के लिए उसके स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही महर आई तो दोनों गाड़ी में बैठने के बाद
पहाड़ की ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गए और वहां से पहाड़ों का नज़ारा लेने लगे। तभी नौफल ने महर से पूछा कि तुम्हारे घर जाने के बाद तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? महर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से ही मैं ये सब कुछ सुनती आ रही हूँ और मैं उनकी डांट की आदी हूँ, इसीलिए मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। नौफिल ने कहा, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया था और तुम्हारी माँ की बात सुनकर मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। महर बोली, तुमने ये सब कुछ पहली बार सुना है, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा, और मैं ये सब कुछ बचपन से सुनती आ रही हूँ और इन हालात की आदी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बस यही बात मेरी सौतेली माँ को बर्दाश्त नहीं है। वो मेरे अब्बू का गुस्सा मुझ पर निकालती रहती हैं। नौफिल ने कहा, चलो अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ प्यार हो। महर ने कहा, मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जा सकती और मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए किसी ठोस वजह की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। नौफिल ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारे अब्बू आ जाएं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूँगा। महर ने कहा, अच्छा, तुम क्या बात करोगे? नौफिल ने कहा, मैं उनसे तुम्हारे बारे में ये बात करूँगा कि वो तुम्हें मेरे साथ जाने दें। महर बोली, अच्छा, तो क्या मेरे अब्बू मुझे तुम्हारे साथ जाने देंगे? नौफिल ने कहा, नहीं पागल, मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊँगा। एक पल के लिए महर बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ देर बाद बहुत संजीदा हो गई। नौफिल ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें अफसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूँगा। इतने में महर के मोबाइल की घंटी बजी। महर ने अपने बैग से मोबाइल निकाला तो देखा कि महर के अब्बू की कॉल थी और उन्होंने बताया कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ और तुम भी घर वक्त पर पहुँच जाना। कॉल बंद करने के बाद नौफिल ने महर से पूछा कि तुम्हारे अब्बू भी जानते हैं कि तुम पूरा दिन बाहर गुजारती हो? महर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे अब्बू सब जानते हैं। नौफिल बोला, ठीक है, फिर कल मैं तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारी शादी की बात करने के लिए आ रहा हूँ। महर मुस्कुराने लगी। नौफिल ने महर को उसके घर के करीब छोड़ा और वापस होटल में चला गया। होटल आने के बाद नौफिल कई दिनों बाद बहुत ही पुरसकून नींद सोया था, क्योंकि उसने सुबह महर के अब्बू से मिलना था। सुबह होते ही नौफिल जल्दी से तैयार हो गया और महर से मिलने के लिए स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो महर स्कूल से बाहर नहीं निकली। नौफिल महर के लिए परेशान होने लगा। तभी उसकी एक सहेली ने बताया कि आज महर स्कूल नहीं आई, क्योंकि महर के अब्बू काफ़ी दिन के बाद घर आए हैं, इसीलिए उसने छुट्टी ली है। नौफिल ने उसकी सहेली से महर का फ़ोन नंबर लिया और नंबर लेने के बाद उसने महर को कॉल की। महर नौफिल की कॉल सुनकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि इतने दिनों में नौफिल और महर एक दूसरे के साथ अपना नंबर शेयर करना भूल गए थे। जैसे ही महर ने नौफिल से बात की तो खुश हो गई। नौफिल ने बताया वो कब से स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था और तुम्हारी सहेली से नंबर लेने के बाद तुम्हें कॉल की है। अब मुझे बताओ कि तुमने हमारे बारे में अपने अब्बू से बात की है या नहीं? क्या मैं तुम्हारे अब्बू से मिलने के लिए घर आ जाऊं? महर ने नौफिल से कहा, 1 मिनट, मैं तुम्हें अभी वापस कॉल करती हूँ, और कॉल बंद कर दी। महर ने चंद मिनट के बाद नौफिल को दोबारा कॉल की और कहा कि उस वक्त मेरी सौतेली माँ मेरे पास थी, इसीलिए मुझे कॉल काट के दोबारा करनी पड़ी। मैंने तुम्हारे बारे में अपने अब्बू से बात की है और अब्बू ने तुम्हें घर आने से मना किया है और कहा है कि वो खुद तुमसे बाहर कहीं मिलकर बात करेंगे। नौफिल ने कहा, ठीक है, फिर तुम इन्हें बाहर ले आओ ताकि मैं उनसे मिलकर बात कर सकूं। महर अपने अब्बू को लेकर नौफिल के बताए हुए मतलूबा एड्रेस के होटल पर पहुंच गई। महर ने अपने अब्बू को नौफिल से मिलवाया। कुछ वक्त की मुलाकात में नौफिल को महर के अब्बू ने अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। तभी महर की सौतेली माँ की बहन ने
مہر اور اس کے ابو کو اس امیر لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا اور فوراً گھر جا کر مہر کی سوتیلی ماں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ جب مہر اور اس کے والد گھر گئے تو مہر کی سوتیلی ماں خوب آگ بگولا تھی۔ اس نے مہر اور اس کے ابو سے جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں باپ بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی نہ جانے اس عورت کے دل میں کیا خیال آیا، شاید بے عزتی کے خوف سے تھوڑی دیر بعد اس نے گھر کا دروازہ ان دونوں کے لیے کھول دیا۔ یہ دونوں باپ بیٹی اندر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مہر کی ماں کا رویہ مہر کے ساتھ بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ یہ بہت نرمی سے پیش آ رہی ہے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو وہ مہر کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کا ناشتہ تیار کر کے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ آج زندگی میں کافی عرصے بعد مہر کے ابو بھی گھر سے کافی خوش کام پر جا رہے تھے۔ مہر کے ابو کو پھر 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا تھا۔ مہر اور اس کے ابو دونوں بہت پریشان تھے۔ آخر مہر کے ابو اس کو اپنی گاڑی میں لے کر اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ مہر سے کہنے لگے، نہ جانے اس عورت کے دل میں کیا چل رہا ہے اور اس طرح کی تبدیلی اس کے ذہن میں کون سی فلم چلا رہی ہے۔ مجھے اس کے اس رویے سے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ سفر پر بھی نہیں لے جا سکتا۔ نہ جانے میرے جانے کے بعد یہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ مہر نے کہا، ابو آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں، میں خود کی حفاظت کر لوں گی، اور آپ کے جانے کے بعد نوفل میرے پاس ہے جو میرا خیال رکھے گا۔ مہر نے اپنے ابو کو بہت تسلی دی اور اس کے ابو اسکول چھوڑ کر اپنے سفر پر چلے گئے۔ چھٹی کے بعد مہر اور نوفل ملے۔ مہر نے نوفل سے رات والا سارا واقعہ بیان کیا۔ نوفل نے کہا، تمہاری سوتیلی ماں کے اس رویے کے پیچھے ضرور بہت بڑا پلان چل رہا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی اور مہر نے نوفل سے کہا، آپ مجھے جلدی سے گھر چھوڑ دو۔ نوفل مہر کو چھوڑ کر واپس اپنے ہوٹل آ گیا اور دونوں فون پر بات کرنے لگے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد مہر باتیں کرتے ہوئے سو گئی، اور مہر کے سونے کے بعد نوفل نے کال بند نہیں کی بلکہ اپنے موبائل کو اسپیکر پر رکھ کر خود بھی سو گیا۔ اچانک سے ایک شور سے نوفل کی آنکھ کھل گئی۔ یہ شور موبائل سے آ رہا تھا اور مہر نہیں جانتی تھی کہ نوفل اس کی آواز سن رہا ہے۔ نوفل نے جب آواز پر توجہ دی تو اسے معلوم ہوا کہ مہر کی ماں اسے کسی کے ہاتھوں بیچ رہی تھی، اور مہر مسلسل روتی جا رہی تھی اور اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جیسے ہی مہر کے رونے کی آواز سنی تو نوفل مہر کے گھر کی طرف تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اور اس نے مہر کی سوتیلی ماں سے مہر کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی مہر کو نہیں جانتی، جبکہ نوفل اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ نوفل نے مہر کی سوتیلی ماں کو دھمکانا شروع کیا۔ اس کے باوجود اس ذلیل عورت نے اس کو مہر کے بارے میں نہیں بتایا، یہاں تک کہ نوفل نے اسے پیسوں کا بھی لالچ دیا، لیکن وہ بدکار عورت کچھ نہیں بولی۔ مجبوراً نوفل کو اس گھر سے نکلنا پڑا۔ نوفل کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاید پہلی بار اس کی آنکھوں سے جھلک رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انجان شہر میں وہ کس طرح سے مہر کا پتہ معلوم کرے۔ نوفل یوں ہی سڑک پر اپنی گاڑی کو روک کر بارش میں بھیگتا ہوا باہر کھڑا ہو گیا اور مہر کو پہاڑوں میں آوازیں دینے لگا، لیکن اسے کہیں سے بھی مہر کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نوفل بے قابو ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جس بھی لڑکی کو دیکھتا تو اسے مہر سمجھتا جا رہا تھا، لیکن جب گہری توجہ کرتا تو اسے سمجھ آتا کہ وہ مہر نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ نوفل کا دماغ پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ نوفل کو ہر لڑکی سے نفرت ہونے لگی اور وہ خود میں ہونے والی تبدیلی پر شرمندہ ہونے لگا اور سوچنے لگا شاید اس نے ایک اچھا لڑکا بن کر بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ یہ زمانہ اس قابل نہیں کہ کوئی شریف انسان شرافت کی زندگی گزار سکے۔ اس سے بہتر وہی زندگی تھی جب میں ہواؤں میں اڑنے والی رنگین تتلیوں کو مسل دیتا تھا۔ اس زمانے کی لڑکی اسی قابل ہے۔
इसी गुस्से की वजह से नौफिल पहाड़ों से दूर शहर में एक बंगले पर आ गया। उस वक्त नौफिल बहुत गुस्से में था और गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उस बंगले में रहने वाली मैडम बाली ने नौफिल से मुलाकात की और कुछ पल नौफिल से बात करने के बाद वो समझ गई कि ज़रूर उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है और अब यह अपने दिल पर मरहम लगाने के लिए यहाँ आया है। उन्होंने नौफिल से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नौफिल ने कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो इस बंगले में सबसे खूबसूरत हो। मैडम बाली ने कहा, आज ही एक लड़की मेरे पास आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश है, जो बिल्कुल गुलाब के एक फूल जैसी है। नौफिल ने कहा, इसे जल्दी से मेरी गाड़ी में बिठा दे। वो उस लड़की को लेकर अपने रेस्ट हाउस में चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने अपनी एक नौकरानी को आवाज़ दी और कहा कि उस लड़की को मेरे बेडरूम में ले जाओ। नौफिल उस लड़की को घसीटता हुआ अपने रेस्ट हाउस तक लेकर आया और फिर उसकी नौकरानी उसे नौफिल के कमरे में ले गई। कुछ देर बाद नौफिल कमरे में गया तो उसने देखा वो लड़की बिस्तर पर थी। नौफिल गुस्से में बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा इंसान नहीं और सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं। नौफिल उस लड़की से मुखातिब होने लगा कि तुम जानती हो, मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। उस लड़की ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसकी माँ ने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया और इस चीज़ का बदला मैं उस औरत से ज़रूर लूँगा। ये सुनकर बिस्तर पर मौजूद लड़की खड़ी हो गई और फौरन से उठी। उसने जैसे ही नौफिल का चेहरा देखा तो नौफिल के गले लग गई। नौफिल ने उस लड़की को खुद से अलग करके बिस्तर पर धकेल दिया और कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे नफ़रत है हर उस औरत से जो मोहब्बत के दावे करती है। उस लड़की ने मेज़ पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और उसमें मौजूद पानी नौफिल के मुंह पर फेंक दिया। नौफिल ने एक झटका लिया और उस लड़की को गुस्से से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही नौफिल ने अपना हाथ उठाया तो उसने देखा वो लड़की मेहरबानो थी, जिसे उसकी माँ ने चंद रुपयों के लिए बेच दिया था। नौफिल की नज़र जैसे ही मेहरबानो पर पड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेहर ने नौफिल को देखकर रोना शुरू कर दिया और उसने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसकी माँ ने उसे बेच दिया था। इधर जब मेहर के अब्बू वापस आए तो वो भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हुए और दर बदर अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। आखिर उन्होंने थक हार कर नौफिल को कॉल की। मेहर और नौफिल आपस में बात कर रहे थे। इतने में नौफिल के मोबाइल पर घंटी बजी। नौफिल ने कॉल देखी तो कॉल मेहरबानो के अब्बू की थी। जैसे नौफिल ने कॉल सुनी तो मेहरबानो के अब्बू अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, न जाने मेहर की सौतेली माँ ने मेहर के साथ क्या किया है और सुबह से शाम हो गई है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेहर जिंदा भी है या नहीं। और रोने लगे और मुझे उसका कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। नौफिल ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि मेहरबानो कहाँ है। मेहरबानो के अब्बू ने कहा, मुझे बताओ कहाँ है, क्या तुम जानते हो? मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। नौफिल ने अपने रेस्ट हाउस का एड्रेस मेहरबानो के अब्बू को बताया और कुछ घंटों में मेहर के अब्बू वहाँ आ गए। वो अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेहर यहाँ उसके साथ मौजूद है। मेहर ने सारी बात नौफिल को और अपने अब्बू को बताई। नौफिल ने कहा, मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। मेहर के अब्बू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह की जालिम औरत के साथ वैसे ही बुरा होना चाहिए जिस तरह उसने मेरी बेटी के साथ बुरा करने की कोशिश की है। अगर तुम उस बंगले पर ना जाते तो शायद आज मेरी बेटी महफूज ना होती। मेहर ने कहा, ये मेरा और नौफिल का सच्चा प्यार ही था जिसने मुझे और मेरे प्यार को बचा लिया। नौफिल ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मेहर के अब्बू ने कहा, बेहतर यह है कि मैं आज ही तुम दोनों का निकाह करवा दूं, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग ना कर सके। इतने में सुबह हो चुकी थी। वो तीनों सीधा अदालत चले गए और वहाँ निकाह करने के बाद जब घर आए तो मैडम बाली की कॉल आ गई
اور انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تک میری مطلوبہ لڑکی کو واپس نہیں پہنچایا۔ نوفل نے میڈم بالی سے کہا وہ لڑکی نہ جانے رات کو ہی میری گاڑی سے اتر کر بھاگ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی ہے، شاید وہ خود ہی آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ میڈم بالی نے کہا کہ کوئی بھی بھاگی ہوئی لڑکی واپس نہیں آتی، کیونکہ اس گندے ماحول میں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ نوفل نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی قیمت دے دوں گا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بونس بھی دوں گا۔ میڈم بالی خوش ہو گئی اور کہا کس طرح کا بونس ہے؟ نوفل نے کہا اس لڑکی کے بدلے میں آپ کو ایک اور عورت بھجواتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میڈم بالی راضی ہو گئی۔ نوفل نے مہر کے ابو سے مل کر ایک پلان بنایا اور اس پلان کے تحت مہر کے ابو اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے جھگڑنے لگے اور کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی کو اس طرح بیچ دیا۔ لیکن مہر کی سوتیلی ماں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی مہر کے ابو نے اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم نے مہر کو کس جگہ بیچا ہے، اور اپنی بیوی کو میڈم بالی کے بنگلے پر لے آیا۔ میڈم بالی نے اپنے بنگلے میں موجود ایک لڑکی سے کہا کہ ہمارے مہمانوں کو دوسرے کمرے میں بٹھاؤ۔ اتنی دیر میں نوفل اور مہر کے ابو نے میڈم بالی سے پوری بات کی اور وہاں سے چلے گئے، یہاں تک کہ مہر کے ابو نے اس عورت سے ہونے والے اپنے دونوں بچے بھی اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیے، اور وہ ان بچوں کو لے کر مہر کے پاس آ گئی اور ان کی ذمہ داری مہر کو دے دی۔ اس کہانی نے ہمیں بہت اچھا سبق دیا ہے، وہ یہ کہ اگر پیار سچا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی بھی ظالم دو پیار کرنے والوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت برا انجام رکھا ہوتا ہے۔ مہر کی ماں نے جس دلدل میں مہر کو پھینکنا چاہا تھا، نوفل اور مہر کے پیار نے اسی دلدل میں مہر کی سوتیلی ماں کو ڈال دیا تھا۔ اس عورت کو ایک مظلوم بچی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بدکار عورت اپنی سوتیلی بیٹی سے اس قدر نفرت اور حسد کرتی تھی کہ جلن میں اس نے اسے برے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ بہتر تو یہی تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس بچی کو اس ہاتھ میں سونپتی جس کے ساتھ وہ بچی خوش رہ سکتی، لیکن اس کے باوجود حسد میں اس عورت نے اچھا نہیں کیا، اور اب اسے ہمیشہ اسی دلدل میں رہنا پڑے گا جو دلدل کا گڑھا اس عورت نے مہر کے لیے کھودا تھا۔ مہر کے ابو نے اپنی بیوی کو میڈم بالی کے بنگلے پر کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور اسے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ اس طرح جس عورت نے مہر کی شکایت اس کی سوتیلی ماں سے کی تھی، اس نے مہر کے ابو کو کال کی اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مہر کے ابو نے بالکل ویسے ہی کیا جس طرح انہوں نے مہر اور اس کے ابو کا تماشا دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنے بیوی بچوں کو بالکل ٹھیک گھر پر چھوڑ کر آئے تھے۔ جو انسان جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے۔ پیار ایسی چیز ہے جو ایک بگڑے ہوئے انسان کو اچھا کر دیتی ہے، پتھر جیسے انسان کو موم بنا دیتی ہے۔ بس نوفل ہی ایک ایسا لڑکا تھا جو بہت ہی بد زبان، بد کردار اور بگڑا ہوا میرزادہ تھا، اور مہر کے پیار نے اسے مکمل تبدیل کر دیا تھا۔ نوفل نکاح کرنے کے بعد مہر بانو کو لے کر اپنے گھر گیا۔ ہمیشہ کی طرح پہلے تو اس کے ماں باپ بالکل نہیں مانے، لیکن پھر مہر بانو کو دیکھ کر وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے مہر بانو کو اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ مہر بانو نوفل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگی، اور اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو نوفل کے ساتھ مل کر ایک ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا، جہاں وہ اچھی تعلیم و تربیت سے پروان چڑھنے لگے، اور نوفل اور مہر بانو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور ایک اچھی اور سادہ سی زندگی بسر کرنے لگے، اور اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مہر بانو کو نوفل کے گھر پر ہر خوشی ملی جس کی وہ مستحق تھی، اور اسے وہ پیار ملا جو اسے کبھی بھی ملا ہی نہیں تھا۔ اب ان دونوں کی زندگی بہت خوشگوار ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔